आकाशवाणी चंडीगढ़ तो पेश है विजय दिवस ते समाचार दर्शन का विशेष अंक। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 1971 ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਾਲ 1971 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਬਹਾਦਰ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। हमारी फौजों ने आज के दिन, आज से 51 साल पहले एक नए देश को जन्म दिया और वो जरूरी भी था। वहाँ पर जो नागरिक थे उनके ऊपर क्रूर अत्याचार चल रहा, वो शरणार्थी बन चुके थे, हमारे देश में आ चुके। जो मेरी यादें हैं वो मेरी रेजिमेंट के साथ, मैं 63 कैवलरी में कमीशन हुआ और मैंने उस रेजिमेंट को कमांड किया। मेरी रेजिमेंट बांग्लादेश में 4 तरफ से गई और पाकिस्तानी इतने विवश हो गए और इतने शशोपंज में पड़ गए कि उन्होंने मेरी रेजिमेंट को घोस्ट रेजिमेंट का नाम। ये भूतवा रेजिमेंट कहाँ से आ रही, चारों दिशाओं से कैसे आ रही, एक ही रेजिमेंट। और हमारी रेजिमेंट के टैंक PT-76 एकमात्र टैंक थे जो ढाका पहुंचे। ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ IP ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। ਅੱਜ 51 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਔਰ ਬਾਕਮਾਲ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। 71 ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 93,000 ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼। ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਣਥੱਕ ਪਰਿਸ਼ਰਮ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਔਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦੀ ਔਰ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਦੱਤ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, I would like to take this opportunity to wish all my countrymen a very happy Vijay Divas. The day is special for me as it reminds me of my serving in the army as second in command where we were deployed against Pakistan. It was a momentous occasion wherein India took the surrender of 93,000 soldiers of Pakistan. Wish you all the best. Jai Hind. ਜੈ ਭਾਰਤ। ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਨਾਲ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। 71 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਡਿਪਲੋਇਡ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਸੌਰ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਦੀ ਸਰੈਂਡਰ ਲਈ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਾਇਆ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 14 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਟੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਲ ਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸਲਾਰੀਆ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। जो आपने बॉर्डर फिल्म देखी है, उस फिल्म से मैं उस पलटन का अफसर हूँ मैं और 71 वार में एज ए कैप्टन में लड़ाई में शामिल था और जैसलमेर के एरिया के लोंगेवाला पोस्ट के ऊपर हम लोग थे। बटालियन हमारी सैदेवाला में थी। बाकी फिल्म में आपने सबको देख चुके हैं, हमारे शहीद स्मारक बने हुए हैं, हमारे गेट बने हुए हैं। ये हमारी शहीद परिवार परिषद के बहुत प्रोजेक्टों के साथ बने हुए हैं। इस काम में फौज ने हमारा साथ दिया, सिविल अथॉरिटी ने हमारा साथ दिया, एडमिनिस्ट्रेशन, शासन प्रशासन सभी ने हमारी मदद की, जिससे हमारा ये शहीद परिवारों के हम मनोबल को ऊंचा करने में कामयाब रहे। देश के जो हमारे वीर सैनिक हैं इनको याद करना हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। ये हमारा कोई आसान नहीं है, एक जिम्मेदारी है।
ਭਿਵਾਨੀ 'ਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕੈਪਟਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਤਵਰ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ 7 राजपूताना राइफल मार्च 1971 से हमने जो है ये बांग्लादेश बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी जब तक युद्ध डिक्लेयर नहीं था। और उस टाइम भी हमने काम किया, मुक्ति वाहिनी के साथ भी काम किया, मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग भी दी। और उसके बाद 3 दिसंबर 1971 को हमारे देश में इमरजेंसी डिक्लेयर होगी, पूरा युद्ध शुरू हुआ। 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक ये युद्ध चला और 16 दिसंबर को जनरल न्याजी ने 93,000 फौजियों के साथ जो पाकिस्तान की फौज थी उसने सरेंडर कर दिया। हमारे जगदीश सिंह अरोड़ा साहब के सामने जो कि ईस्टर्न कमांड के जीओसी थे और मैं 7 राजरीफ का हिस्सा था। 7 राजरीफ ने 3 अटैक किए, ढलाई पे किया और मैनामती में जो लड़ाई लड़ी हमने, मैनामती पहाड़ी जो बांग्लादेश में है उसको 7 राजपूताना राइफल्स ने फतेह किया और फिर विजय हासिल की। उसी के उपलक्ष्य में उस टाइम के राष्ट्रपति ने हमें बैटल ऑनर डे के रूप में मैनामती, हमारे 7 राजपूताना राइफल्स के साथ में एक नाम जुड़ा मैनामती हिल्स पर न विजय पाई है और उसकी पूरी इतिहास हमारे साथ। जो पहला हमारा अटैक हुआ उसमें अल्फा कंपनी और ब्रो कंपनी का अटैक गया था और ब्रो कंपनी किसी कारण से सक्सेस नहीं हुई। अल्फा कंपनी जो है उस पहाड़ी पर चढ़ गई, विजय पा ली हमने रात में ही। और सुबह के टाइम में जब हुई तो ब्रो कंपनी की बहुत कैजुअल्टी हुई। हम तो उसमें फिर डेल्टा कंपनी को मौका दिया, अल्फा डेल्टा दोनों रात में ही चढ़ी और दोनों ने फतेहबाई सारी जो यूनिट ने बहुत बड़ी विजय पाई और उसमें हमारी जीत हुई। ਅੰਬਾਲਾ 'ਚ ਸਾਲ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ੌर्य ਚੱਕਰ ਵਿਜੇਤਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। मैंने 1971 की लड़ाई लड़ी है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वीवी गिरी के साथ फोटोग्राफ खींचे हुए हम मौजूद हैं और अपने आप को एक अच्छा वीर समझता हूँ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, मेरे फादर साहब की उम्र 95 रनिंग है और 1947 में ये भर्ती हुए आर्मी में। 1971 में जब पाकिस्तान के साथ भी लड़ाइयाँ हुई हैं 1947 से 5, 6, 7 जो भी हैं वो ऑपरेशन देन पोर्चुगीज ये सब इन्होंने लड़ी हैं। 1965 की चाइना के साथ, 62 की सब लड़ी हैं। और 1971 में ही वॉज ए बॉम्ब एक्सपर्ट, बॉम्ब डिफ्यूज करने में माहिर हैं। बॉम्ब डिस्पोजल प्लेटून इनकी कंपनी है किरकी। और 1971 में फिरोजपुर जीरा वहाँ बॉम्ब पाकिस्तान ने गिराए थे तो उनको मैनुअली डिफ्यूज करके, उनका मैकेनिज्म नया था और उनको मैनुअली अपने हाथों से डिफ्यूज करके शौर्य प्राप्त किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया। पंचकुला ਵਿੱਚ सेवा मुक्त कर्नल श्याम सुंदर कालिया ने विजय दिवस ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 71 की वार हुई है तो मेरी पलटन JNK में तैनात थी और वहाँ पर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया जिसको हमने खदेड़ा और मार भगाया और उसके अंदर उसके 8 कैजुअल्टीज हुई जो हमने गिनी और वो अंधेरे में उनको वापस ले गए। इसी दौरान हमारे भी कुछ जवान जख्मी हुए थे क्योंकि उन्होंने शेलिंग बहुत की। इसके अलावा दूसरे दिन हमारी 2 कंपनियों में जिसमें मेरी कंपनी भी शामिल थी, हमने उनकी एक पोजीशन पर अटैक किया। वहाँ पर एक MMG मीडियम मशीन गन लगी हुई थी और वो बहुत अच्छी तरह से साइट की हुई थी जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। इन्फेंट्री टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए उनके जो यहाँ पर MMG साइटेड थी उसके नजदीक पहुँचे और एक हमारे जवान ने उस MMG को खींच लिया बंकर से बाहर। उसी दौरान उसके एक पेट में बर्स्ट लगा जिसमें 3 गोली उसके पेट के पार हो गई मगर वो जवान जिंदा रहा। इन दी मीन टाइम हमने उस बंकर के ऊपर जल्दी से हवा बोला, ग्रेनेड फेंक कर उसको बर्बाद किया और यूं ही ये MMG साइलेंस हुई तो हमारी कंपनियों ने हमला करके वो पोजीशन पाकिस्तान से ले ली और उसे मार दिया। फरीदाबाद च सेवा मुक्त कर्नल ऋषिपाल गोयल ने कहा, 1971 युद्ध में जाना हुआ बांग्लादेश में लड़ाई के दौरान और वहां पर सरेंडर के बाद हमने सारा उनका एमिनिशन, उनका राशन, उनकी गाड़ियां, उनके टैंक्स सब हमारे कब्जे में आ गए और वहां पर मास सरेंडर होते हुए कि उनके फौजी लोग किस तरह से अपने हथियारों को नीचे रख करके खड़े होकर के सावधान में और अपने सरेंडर किया। सबसे रोमांचित जीत यही थी
जो भारत ने प्राप्त की पाकिस्तान के खिलाफ। ये इतनी बड़ी जीत थी जिसका इतिहास में सदा नाम रहेगा, बांग्लादेश का नाम रहेगा। ये उस समय की घटना है जो आज भी हमें रोमांचित करती है। जय हिंद। ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕ ਨੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ। 16 दिसंबर 1971 को भारत ने 93,000 जो कि पाकिस्तानी सैनिक थे उनको सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था और जनरल नियाजी को अपने घुटनों पर टेक दिया था। 16 दिसंबर विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਕੈਪਟਨ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜੰਗ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया जो कि बरनाला में युद्ध हुआ। पाकिस्तान के जहाज 2 थे, 104 स्टार फाइटर एंड F-86 बम्बर। उन्होंने हमारे को पूरा अटैक किया, 36 गन के ऊपर फायर किया और हमने उनको जवाब दिया। एक पाकिस्तान का जहाज 104 स्टार फाइटर हमने मार गिराया और दूसरा F-86 जहाज फरार होके पाकिस्तान में चला गया। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਾਚਿਕਾ ਚੰਚਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ।